Good evening, students. Am I audible? Okay, thank you. Now I am going to present my screen. Please write in the chat box whether it is visible or not. Okay, thank you. So, my name is Rajiv Gupta, and I am teaching you mathematics, and I am teaching since 2020 in SA online classes. Okay, so this is your first class of mathematics. Okay, we are covering NCERT syllabus, and if you are using other books like every in other in every another school there are many different books are followed, but we are covering NCERT books and the syllabus will be same. Okay, and everyone please mark your attendance in the chat box, and also add name, class, and location. Okay, so this is your lecture one, and we will discuss number system. Before that, we see the syllabus. Okay, your first chapter is number system, and after that, second chapter is polynomial, coordinate geometry, linear equation in two variables, introduction to Euclid's geometry, lines and angles, triangles, quadrilaterals, areas of parallelograms and triangles, circles, constructions, Heron's formula, surface area and volumes, statistics and probability. Okay, these are the topics you have to study in class 9th. Okay, so before that, before starting the number system, we know why mathematics is important and why we are studying it. Okay, so mathematics is important because in every field we are using numbers. Basically, in mathematics we are studying numbers. Okay, if you talk about in astronomy, we find the distance between two stars, and we also use numbers during shopping, and if we are traveling in trains or using bike and some other things, everywhere we can see numbers. Okay, so we are starting number system. Okay, तो नंबर सिस्टम जो है वो जो भी बहुत सारे नंबर्स जो है उनके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं. ओके, सो आई एम टेकिंग अ लाइन. ओके, before starting the number system, I am asking you some questions. Okay, before that you have studied many numbers like even number, odd numbers, prime numbers. Okay, can anybody tell me what is even number? Have you heard even number? Okay, a number is divisible by 2. Okay, odd number. Okay, even number क्या होता है कि the number which is divisible by 2. Okay, so this is even number. Okay, जैसे कि 2, 4, 6, 8, these are divisible by 2. So हम लोग इसको बोलते हैं इवन नंबर. ओके,
What is odd number? Odd number is which is not divisible by 2. Which is not divisible by 2. तो कौन कौन सा नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3, सॉरी व्हाट ऑड नंबर कौन सा होगा, 1 3 5 7 9. These numbers are not divisible by 2. Okay. So नंबर सिस्टम में जैसे क्या आता है आपका, पहले अगर हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ओके, तो नंबर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स प्रेजेंट इन द नंबर सिस्टम, there are infinite numbers. Okay, there are infinite numbers. If we represent on a line, so you can see that this is a line. Okay, and take a point on this number line. Okay, this is 0. Okay, if we go from if we go right side from 0, we can see the positive numbers are available. Okay, and if we go from left side from 0, we can see negative numbers. Okay, I am drawing another number line and marking this point is 0. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, so if the number is starting from 1, after 1 2 3 4, एंड इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो नंबर्स का सीरीज होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स. ओके, ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स जो कि द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ तक होगा, ठीक है, ये कहाँ तक एंड होगा, तो ये इसको हम लोग कितना भी आगे तक बढ़ाएंगे, ये इनफाइनाइट तक हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं. ओके, इनफाइनाइट. ओके, अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की. ठीक है, होल नंबर्स क्या होता है, तो नेचुरल नंबर्स जो है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हम क्या करते हैं, उसमें 0 एक ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो वो आपका होल नंबर्स होता है. जैसे कि ये आपका नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे जैसे 0 1 2 3 4, इस तरीके से अगर हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो ये आपका हुआ नेचुरल होल नंबर. ठीक है, और होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं. ठीक है, होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को जो है वो कैपिटल N से डिनोट करते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर्स यहीं पे एंड नहीं होता है, इसके अलावा भी और नंबर्स होते हैं. जैसे कि हमको और बहुत सारा होल नंबर्स चाहिए. ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 होगा. ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और आगे तक इंक्रीज करता हूँ. ठीक है, ये हुआ आपका 6, ये हो गया आपका, जैसे 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7. उसी तरीके से हमको बहुत सारा नंबर जो है वो होल नंबर्स में प्राप्त होंगे. और हम लोग नंबर्स को नंबर
मतलब लाइन पे क्यों दिखाते हैं? बिकॉज क्योंकि हम इसको बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइन को हम कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक इसे ले जा सकते हैं। इसीलिए नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। ओके, तो अगर जीरो से अगर हम पहले जाते हैं, ठीक है, जीरो से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो किस तरीके के नंबर्स हमें प्राप्त होंगे? तो जीरो से हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो यहाँ पे होगा आपका -1, यहाँ पे होगा आपका -2, यहाँ पे होगा आपका -3, यहाँ पे होगा आपका -4। तो ये नंबर्स किस प्रकार के हैं? दीज नंबर्स आर निगेटिव नंबर्स। ओके, तो अब इस तरीके के सीक्वेंस को, इस तरीके के सीरीज को हम क्या बोलेंगे? अभी हमने होल नंबर के बारे में बताया कि जिसमें जीरो इंक्लूडेड होता है, ठीक है, जिसमें जीरो इंक्लूडेड होता है उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ओके, और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम निगेटिव नंबर्स कुछ ले लें, जैसे कि -1, -2, -3, -4, ओके, तो ये इस तरीके के सीरीज को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, तो हमने समझ लिया कौन कौन सा नंबर। एक तो हमने पहले समझा नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमने समझा होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमने देखा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने देखा कि सारे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। ओके, तो दीज सीरीज आर इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जहेलन, which means to count. ओके, तो दीज नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इस तरीके के जो नंबर्स है ये किस तरीके के नंबर्स है? काउंटिंग नंबर्स है। और काउंटिंग, जैसे कि जर्मन वर्ड में हम इसको बोलते हैं काउंट करने। काउंट का मतलब होता है जहलन। ओके, और जहलन से ही आपका जेड आया है। ओके, तो हम लोग इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद क्या सारे नंबर्स इंड हो गए? इसके बाद भी और भी नंबर्स हैं। जैसे कि अगर बात करें, ये थोड़ा सा फिगर कंजस्टेड हो गया है, मैं नया फिगर बना रहा हूँ। ओके, तो ये आपका क्या है? इंटीजर का सीरीज है। ओके, ये आपके इंटीजर्स है। तो यहाँ पे इसके अलावे भी तो और भी बहुत सारे नंबर है, जैसे कि 0 और 1 के बीच क्या आएगा? 0.5 आएगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच क्या आएगा? 0.5। ओके, तो 0.5 कौन सा नंबर हो? या फिर 1 और 2 के बीच क्या आएगा? 1.5, ठीक है। या फिर इसको अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या होगा? 0.5 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होगा 1/2। ओके, 1.5 को कितना लिखेंगे? 3/2। तो अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो क्या 1/2 इसमें से कोई होगा? तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ना ही 1/2, ना ही आपका नेचुरल नंबर है, और ना ही ये होल नंबर है, ना ही ये इंटीजर है। इस तरीके के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
रेशनल नंबर्स, जो कि नंबर लाइन पे ही होता है, ठीक है। और नंबर लाइन पे जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कंफर्मेशन के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। आप लोग चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करेंगे, एम आई ऑडिबल और नॉट। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये जो है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। वैसे नंबर्स जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ये 1/2 और 3/2। बट इसके मतलब इसके केस में क्या है कि जो पी है, ठीक है, जो पी है वो आपका इंटीजर होना चाहिए और क्यू भी जो है वो इंटीजर होना चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ओके। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक फ्रैक्शन का बात करें, पी बाई क्यू, तो पी क्या होता है? पी क्या है? ये होता है नंबरेटर, ये होता है आपका न्यूमरेटर, और ये जो है आपका होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये होता है आपका डिनोमिनेटर, ओके। तो डिवाइड मतलब जब भी हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डिवाइड, ओके। अगर आपका क्यू जो है मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ, इफ क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, तो किसी भी चीज से अगर हम डिवाइड 0 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो क्या उसको हम डिवाइड कर पाएंगे? जैसे कि 0 को मतलब 4 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो या इसको हम क्या डिवाइड कर सकते हैं? नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर को 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका मतलब कि जैसे कि एक नंबर में डिवाइड करके आपको दिखाता, ठीक है। इसके लिए मैं चलता हूँ व्हाइट बोर्ड। जैसे कि मैं 5 को 0 से डिवाइड करता हूँ, ओके। जैसे 0 से अगर मैं यहाँ पे अगर कोसेंट के जगह पे 5 रखता हूँ, ओके, 5 इंटू 0 क्या होगा? 0, ठीक है। स्टिल 5 इज कम, ठीक है। या फिर 0 को मैं फिर 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ये 0 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? 5 ही होगा। तो यहाँ पे जो है अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब जैसे कि 5 बाई अगर 0 मैं लिखता हूँ, ठीक है, 5/0 अगर मैं लिखता हूँ, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ हो सकता है क्या? इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम लोग q नॉट इक्वल टू 0 जो है वो लिखते हैं, ओके। तो ये चीज सबको क्लियर हो गया होगा कि q 0 क्यों नहीं लेते हैं, ओके। जैसे कि अगर सपोज डेट नमरेटर अगर 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 0/5, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 0/5, ओके। तो अगर मैं 0 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे 0 है, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 एंड 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। 0 और 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका इसका वैल्यू क्या होगा? 0/5 का वैल्यू 0, ओके। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q and q not equal to 0। और ये रेशनल नंबर्स के कैसे हो सकते हैं? जैसे कि 2/3, ठीक है, 3/4, 10/15, 25/60, दीज आर रेशनल नंबर, ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स,
rational numbers. Okay, very good. फर्स्ट एग्जाम्पल है, उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताएंगे, ठीक है? ओके, तो अभी हमने पढ़ा जो भी नंबर्स, उसमें ये फोर कौन सा नंबर्स? फोर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स. ओके, एवरीवन गेट आंसर नेचुरल, नेचुरल. ओके, नेचुरल. ओके, नेचुरल, होल, रेशनल. वेरी गुड प्रीशा. फोर इज rational number, natural number, whole number, and rational number. Okay, very good. And five is, I want to see this. Okay, how many students are thinking about that? Okay, number is of like a game. Okay, you should play with the numbers. Okay, आप लोगों को नंबर्स के साथ खेलने से क्या होता है कि बहुत सारे आपको चीजें पता चलेंगी. ओके, जब आप इस चीज को अप्लाई करोगे, अभी तक जो आपने पढ़ा है जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर. ओके, अभी आप पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर. दीज नंबर्स, राइट, मतलब कि आप क्या करेंगे, नंबर्स को 1 to 100 तक जो है वो व्हाइट पेपर पे लिखेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे किस तरीके की चीजें आप वहां से निकाल सकते हैं. जैसे कि अगर जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि नंबर्स आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, तो इस तरीके से नंबर्स आप जब लिखते हो तो देखोगे कि क्या हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है. ओके, तो ये क्या हो रहा है, जो भी इवन नंबर आ रहा है वो क्या है, एक एक को छोड़ करके आ रहा है. ठीक है, एक एक के गैप पे आ रहा है. ओके, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक एक गैप है. ओके, जो भी मतलब इवन नंबर्स. ओके, और जैसे कि यहाँ पे 1 के साथ अगर 1 को हम लिखते हैं तो ये हो गया आपका 11. ठीक है, और 2 के पहले अगर हम 1 लिखते हैं तो ये हो गया आपका 12. ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे कि और क्या देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 4 6, तो ये जो है आपका 2 का टेबल भी हो गया. ठीक है, 2 का टेबल भी हो गया. तो इस तरीके से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग इसके बारे में हम आगे और कुछ भी डिस्कस करेंगे. आप लोग पहले इसको व्हाइट पेपर पे 100 तक नंबर लिखेंगे, उसमें कुछ नई नई नंबर्स को आप लोग उसमें से क्या कुछ एनालाइज किए आप उसको देखिएगा. ओके, तो उसके बारे में हम लोग किसी क्लास में, दूसरे क्लास में और विस्तार से डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की. हाँ, 3/2 कैसा नंबर है? इट इज रेशनल, नेचुरल, रेशनल नंबर. ओके, वेरी गुड. ओके, इफ आई राइट -1/2 इज रेशनल और नॉट? ओके, why -1/2 is rational number? Because it
can be written in the form of P by Q. Okay, and P and Q are integers. P and Q are integers. P and Q are integers, and -1 is integer. Okay, and 2 is also integer, and you can say also 2 is natural number, whole number, and integers. Okay, so -1 by 2 is rational number. 1 by 0 is rational number or not? 1 by 0 is rational or not? No. Why? Because q denominator is 0. Denominator is 0. तो इसीलिए ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो. 0/6 इज रेशनल और नॉट? इट इज रेशनल नंबर. ओके, एंड 0 क्या क्या होगा? 0 होगा आपका रेशनल नंबर. ओके, 0 कैन बी अ रेशनल नंबर. कैसे? अगर हम 0 को 0/1 लिखते हैं, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया. ओके, 0 जो है वो होल नंबर भी है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये होल नंबर है. ठीक है, और क्या हो सकता है ये? और ये इंटीजर भी है. ठीक है, इंटीजर भी है. 0 इज इंटीजर. हम लोगों ने देखा था नंबर लाइन पे इंटीजर वाले सीरीज में, तो उसमें 0 भी इंक्लूडेड था. ओके, तो उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स. ओके, एग्जाम्पल देखने को पहले एक चीज हम लोग और देखते हैं, जो कि ये आपका जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका है रेशनल नंबर. ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? तो रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स होंगे. रेशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या होगा? ये देखिए, ये बड़ा सा आपका सर्कल है. ठीक है, तो इस बड़े से सर्कल में, बड़े से गोला में, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं. ठीक है, जैसे कि इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के अंदर में कौन कौन से नंबर्स होंगे? रेशनल नंबर के अंदर में कौन कौन से नंबर्स होंगे? तो रेशनल नंबर के अंदर में होंगे आपके इंटीजर्स, होल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स. ओके, और रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? 3/5, 1.375, 21.6. तो ये सारे डिसिमल वाले भी नंबर जो है वो रेशनल होते हैं. डिसिमल को हम लोग मतलब अगले क्लास में जो है वो अच्छे से कवर अप करेंगे कि कौन सा मतलब डिसिमल नंबर जो है वो रेशनल होगा, कौन सा नहीं होगा. ओके, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. उसके बाद है इंटीजर. ओके, तो इंटीजर जो है वो कौन कौन सा है? -3, -22, -562, एंड होल नंबर जो है वो 0 है. नेचुरल नंबर में 72, 431. ओके, तो ये जो है वो पूरा ये जो आपका है वो इंटीजर्स. इसके अंदर जो भी इस मतलब गोले के अंदर जो भी आपके नंबर्स हैं वो सारे क्या है? इंटीजर्स. उसके बाद है आपका होल नंबर्स. होल नंबर्स में क्या है? 0 और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे. ठीक है, और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ वही नंबर्स होंगे जो कि 1 से स्टार्ट होकर के इनफिनाइट तक जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको आई थिंक रेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गया होगा. ठीक है, इरेशनल नंबर्स हम लोग थोड़ा देर के बाद कवर अप करेंगे. ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके, एग्जाम्पल 1 है आपका
आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो वी हैव सीन व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर इज starts from 0, 0, 1, 2, 3, okay, and natural numbers is 1, 2, 3, 4, and point is saying that every whole number is natural number. Is it true or false? It is false, because 0 is not in 0 is not in natural number. Okay, 0 is not in natural number, so this statement is wrong. Okay, this is false. Okay, next statement is every integer is a rational number. Every integer is rational number. So see here, integers कौन कौन से होते हैं? Integers जैसे कि -1, -2, 0, 2, 4, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ओके, रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल में होंगे -1/2, 2, 3। जैसे कि एक हमने ग्राफ देखा था ऐसे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपका 0, 1, 2, 3 और इधर की तरफ में -1, -2। ये किस चीज का सीरीज है? ये इंटीजर का है। ठीक है, तो दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, दीज आर इंटीजर्स, एंड inside the integer between these numbers we can see that some rational numbers are there. Okay, -1/2, sorry, -3/2, -1/2, okay, here 1/2, so these are rational number. So these all series are rational number. Okay, and but 0, 1, 2, 3 or -1, -2 is integers. Okay, तो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में नहीं होंगे, लेकिन जो भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स में होंगे। -1 जो है वो रेशनल है। ठीक है, और इंटीजर्स भी। तो क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका true। ठीक है, 3 नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या देखिए, यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट है। तो क्या सारे रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर होंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि -1/2 जो है वो इंटीजर नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 के बीच हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए, यहाँ पे ये आपका हो गया नंबर लाइन। ओके, और यहाँ पे लेता हूं मैं 0, यहाँ पे मैं लेता हूं 1, यहाँ पे मैं लेता हूं 2। ठीक है, some students are answering multiplying and dividing by 10। see this। ओके, ये आपका नंबर लाइन है। ओके, और 1 और 2 के बीच हमें
5 रेशनल नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 2 ये कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो किसी भी चीज को हमको हाफ करना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले वाले और लास्ट वाले को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमको बीच वाला पॉइंट जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज 3/2। तो ये हो गया आपका एक रेशनल नंबर। ठीक है, 1 और 2 के बीच में जो है वो एक रेशनल नंबर हमें मिला 3/2, लेकिन हमें चाहिए कितने, 5 रेशनल नंबर्स हमें चाहिए। तो एक हम क्या करते हैं, 1 और 3/2 को हम हाफ कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3/2 ये कितना होगा, 2 प्लस 3 कितना होगा, 5/2। ठीक है, 5/2 इन दोनों को ऐड करने पे हुआ, इसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 5/4। दिस इज 5/4। तो यहाँ पे होगा आपका दिस पॉइंट इज 5/4। ठीक है, अब 3/2 और 2 के बीच में भी नंबर्स होंगे, 3/2 और 2 के बीच में भी नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे कोई नंबर्स होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो 3/2 और 2 को हम ऐड करेंगे, कितना होगा, तो 3/2 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 7/2। ठीक है, तो 7/2 को हम इसको सारे को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, 7/4। ठीक है, तो 7/4 जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा नंबर प्राप्त किया, 5/4, 3/2 एंड 7/4। ओके, तो ये 3 नंबर्स मुझे मिले। तो क्या 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे, यस और नो? नो, व्हाई, बिकॉज वी कैन सी हियर 1 एंड 5/4। ओके, 1 और 5/4 के बीच में भी नंबर्स होंगे। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर हो, करेक्ट सोनम, ओके वेरी गुड, प्रीसा सोनम वेरी गुड। तो किसी भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हों, ओके, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, उसके अलावा भी और भी नंबर्स होते हैं। तो 1 और 5/4 के बीच हमें निकालना है तो कितना होगा, तो 1 प्लस इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 5/4 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये होगा आपका 9/4/2, दैट मीन्स 8, 9/8। तो ये पॉइंट जो होगा वो आपका होगा 9/8। हमने 4 नंबर्स प्राप्त किया। ओके, 7/4 और 2 के बीच एक नंबर हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 7/4 प्लस 2, तो ये हो गया आपका, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका 15/4। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15/8। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका 15/8। ओके, तो कितने नंबर्स हमें मिल गए, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हमें मिल गए। इसके अलावा भी और नंबर्स होंगे जैसे कि 5/4 और 3/2 के बीच में,
3/2 और 7/4 के बीच में भी नंबर्स होंगे। ओके, तो देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ओके, सो इस तरीके से हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे टू नंबर्स के बीच में। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब कि लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, मतलब बारी बारी से एक एक को ऐड करना और उसके बीच का रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा चीज ये करेंगे जिससे कि हम आसानी से बहुत सारे नंबर्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2 के बीच मुझे नंबर्स निकालने हैं, वो भी कितने, 5 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, 5+1 करते हैं। ठीक है, 5+1 ये कितना होगा, 6। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा 5+1 ये हो गया आपका 6। जैसे कि 1 है तो 1 में हम क्या करते हैं, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 6/6। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपका, 2 है। ठीक है, 2 को हम क्या करते हैं, 6 से मतलब 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 12/6। ये हो गया आपका 12/6। और 1 को हमने क्या किया है, 6/6 से मल्टीप्लाई किया है। 1 को हमने क्या किया है, 6/6 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या है, 6/6 और यहाँ पे 12/6। अब ये दोनों का क्या है, वैल्यू जो है 6/6 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 12/6 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। बट यहाँ पे हम आसानी से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके बीच का कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो 7/6। ठीक है, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट करके डिनोमिनेटर सेम करके हम लोग रेशनल नंबर निकालते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर का कंसेप्ट सबको समझ में आया, कैसे हम लोग रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में निकालेंगे। ओके, ओके प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, you have any doubt, write in the chat box. We will discuss in next class. Okay, real numbers and these numbers we are discussing in the next class. Okay, तो हम लोग जो है वो ये हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके प्लीज, हम लोग इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, is 0 a rational number? Okay, can you write in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0? Okay, so 0 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? 0 इज रेशनल नंबर। वाई? क्योंकि 0 जो है वो 0 को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो 0/1, 0/2, 0/3. Okay, these are the rational number. Find six rational numbers between 3 and 4. 3 and 4 के बीच हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो कैसे निकालेंगे? तो इसको आप लोग अभी करेंगे. ठीक है, आप लोग इसको निकालिए, निकाल करके बताइए. ट्वेंटी टू बाई सेवन, 23/7. ओके ओके ओके. पर अदर्स प्लीज डू. ओके, आई होप सबने कर लिया होगा. ओके, तो कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे 3/4 के बीच में हमें 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो इसको मैं ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड. तो हमें कितने नंबर चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए. तो 6 + 1 करते हैं, तो ये कितना हुआ? 7. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 21/7. ओके, और 4 में भी हम क्या करते हैं? 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया 28/7. ओके, तो कौन कौन से रेशनल? इसके बाद 21/7 के बाद क्या आएगा आपका नंबर? 22/7. इसके बाद क्या होगा? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. ठीक है, तो ये आपके 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स हुए. तो क्या एक यही मेथड है जिससे कि हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे? तो इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मैंने 7 लिया है. ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. तो यहाँ पे हम लोग 7 से ज्यादा भी ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो. ओके, तो मतलब सपोज दैट यू हैव टू आंसर रैपिडली, सो यू टेक 10. ओके, तो दैट इज 30/10. दैट मीन्स 31/10. अगर यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 3 × 10/10. तो ये हो गया आपका 30/10. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके लिए 40/10 होगा. ठीक है, तो इसके बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे? 9 नंबर्स होंगे. ओके, तो उसमें से 9 नंबर्स में से हमें 6 ही निकालना है. तो 9 में से कोई भी 6 हम लोग चूज कर सकते हैं. ओके, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम 7 ही लें, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं. अगर सपोज दैट यू हैव टेकन लेस देन 7. ओके, less than 7 you have taken less than 7, what will happen? 3 into, if I take 6. Okay, 3/6 divided by 3 into 6 divided by 6, this is 18/6. Okay, uh,
4 इंटू 6/6, ये क्या होगा आपका 24/6। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे, 19/6, 18 के बाद क्या होगा आपका 19/6, 20/6, 23, 21/6, 22/6 एंड 23/6। तो ये कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 नंबर्स हुए, लेकिन हमें 6 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम वही करेंगे जो हमने अभी तक किया है, जैसे कि यहाँ पे आपका 3/5 है, तो हम यहाँ पे इसको 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम 5+1 मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 6 इंटू 3, 18 डिवाइडेड बाई 30, और यहाँ पे 4/5 होगा, 4/5 इंटू 6/6 इक्वल टू 4 इंटू 6 24 डिवाइड बाई 30, ठीक है। तो इसके बाद कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, दैट इज 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। इसके अलावे अगर आप चाहो तो 6/6 से ज्यादा भी नंबर, 6 से ज्यादा भी नंबर ले सकते हो, 7 8 9 10 एनीथिंग। ओके, एंड यू विल गेट rational numbers between two fractions. Okay, next question क्या है, state whether the following statements are true or false, give reasons for your answers. Okay, तो ये आप लोग अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आप लोग इसका आंसर करेंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? Every natural number is whole number because natural numbers are 1 2 3 4 and whole numbers are 0 1 2 3 4. So every natural numbers are whole number, it is true. Okay, every integer is a whole number, it is true or false? It is false because negative numbers are not whole numbers. You can see -1 -2 -3, these are not whole numbers, so every integer is not whole number. Okay, so this statement is false. Every rational number is a whole number, is it true or false? Is it also false? Okay, every rational number is whole number. How is it possible? -1/2, -3, 4/5, these are not whole numbers. Okay, so in today's class we stop here, and I have some questions in the chat box, and Prisha, okay, Prisha have asked, sir, -1/2 is fraction or not? Okay, -1/2, -1/2 is rational number or not? Is it rational number? Yes or no? Is it rational number? And in fraction, fractions are generally positive. Okay, so 1/2 is fraction, and but -1/2 is not fraction. Okay, फ्रैक्शन जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग सारे लोग एक्सरसाइज 1.1 को अपने नोटबुक में
सॉल्व करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इरेशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड नाइट, एंड यू कैन लीव द सेशन।